Good morning, student. So, beta, today we are going to check our next program from the topic object passing, that is question number 6. Okay, children, and it is also a very simple one. In this, children, we have to deal with the time. Okay, na? So now see that what is told in the program ki we have to define a class time with data member as HH and MM. Okay, and member functions are, and children, here in this sheet also you will find that a number of places blank spaces are missing, so you have to just ignore this. Okay, for example, in the first method is given as void get data, and you know that there should be one blank space here. So void get data. The first method is to input HH and MM. So children, you know that here HH represents hour and MM represent minutes. Then the second method is integer time to minute to convert a time to minutes. Void minutes to time converts the time into hours and minute. Then the first method is void add time ob1 comma time ob2, means it takes the two object of the same class, that is time, and it displays the sum of the time period of argument object. Second one is time elapsed, time ob1 and time ob2, and it displays the टाइम elapsed बिटवीन आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट. यानी बेटा हमें दो टाइम पीरियड लेने हैं और उनको सम करके हमको उनका जो है सम बताना है, और दोनों टाइम पीरियड के बीच में डिफरेंस बताना है, कितने आवर्स एंड कितने मिनट्स का डिफरेंस है. और लास्ट फंक्शन क्या करता है बेटा, इट प्रिंट्स द वैल्यूज ऑफ मेंबर डेटा ऑफ द क्लास. ओके, एंड आफ्टर दैट द प्रोग्राम is told that write a program that will compute how long a person sleep at night in minute. The computer should ask the user to enter the time when he goes to bed and the time when he wakes up in hour, minute and second. अच्छा, यहाँ पे देखिए लास्ट में सेकंड भी दिया हुआ है, सो यू हैव टू जस्ट ड्रॉप दैट बिकॉज second is not handled in the class. Okay, so I am removing that seconds, and now come to the answer itself. Okay, so the first line, import java.util class time, and first the two data members are declared, integer hr and mm. One blank space is required here, you know this. Okay, so integer r and minute, these are the two data member. After that the second method is void get data. What it does, it takes the entry of the time period in hours and minutes. So HR and MM, these are the two data members for which I am taking the entry. Next method is integer time to minutes. Okay, integer time to minutes, children, you know that void is not written here. Okay, before the name of the method no void is given, it is told int. Okay, and you know that when a method is declared with the int keyword, what it means कि the method will return an integer value after processing the result. Okay, तो यानी ये फंक्शन क्या करने वाला है कि किसी क्लास के टाइम को यानी आवर्स एंड मिनट को केवल मिनट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, है ना, टाइम टू मिनट्स. और अगला मेथड है क्या, वॉइड मिनट्स टू टाइम INTM. इसमें बेटा क्या होगा, हम इस फंक्शन को कोई m पास करेंगे, m यानी कि मिनट्स पास करेंगे, एंड द मेथड विल कन्वर्ट दैट मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट. ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी. तो ये बेटा हमारा क्या था, फर्स्ट पेज है. इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में. ठीक है, और सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, ये यहाँ पे बाकी मेथड है. जैसे पहला मेथड आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है आपका, void add, it takes the two object of the time class ob1 ob2. और सेकेंड है आपका void time elapsed, it also takes the two object of the same class ob1 and ob2. And here is the main, children, as I told you it earlier also, that in these programs of object passing, okay, the main is very important. Okay children, that how you are going to make the flow of your program so that your program works correctly. तो चलिए मेन में देखते हैं हम लोग. पहले मेन में देखिए क्या बताया गया है. पहले हमने क्या किया, टाइम ए इक्वल टू न्यू टाइम. ठीक है ना, टाइम ए इक्वल टू न्यू टाइम, तो क्या होगा बेटा, एक टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ए नाम से. ठीक है, ये देखिए ए नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, और सपोज इसके पास ये दो डेटा मेंबर हैं.
ठीक है, एक यहाँ पे नाम दिया हुआ है HR और एक दिया हुआ है MM। ठीक है, इन द सेम वे टाइम B इक्वल टू न्यू टाइम, हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया B के नाम से। ठीक है, तो ये देखिए B के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया। B के पास भी दो डेटा मेंबर हैं, HR और MM। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे और देखिए क्या है, टाइम सम और टाइम डिफ। हमने बेटा दो और ऑब्जेक्ट बनाए हैं सम और डिफ के नाम से। ठीक है ना, तो चलिए सम बना लेते हैं यहीं पे। ये सम है और ये यहाँ पे डिफ है। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, सम में इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी के टाइम पीरियड का सम निकाल लेंगे। और ये जो डिफ वाला ऑब्जेक्ट है फोर्थ वाला, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इन दोनों टाइम पीरियड का जो डिफरेंस आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेटा पहले तो हमने यहाँ पे अपने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। ठीक, इसके बाद फिर आइए अगली लाइन क्या लिखी है, ए डॉट गेट डेटा। यानी बेटा आपका जो पहला वाला जो था मेथड वो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। कौन सा, ये ए डॉट गेट डेटा। ये क्या करेगा, आपसे HR और MM की एंट्री ले लेगा। ठीक है, तो HR और MM की एंट्री ले लेगा। पहले हमने कहा ए डॉट गेट डेटा, तो ए वाला अपने HR और MM की यूज़र से एंट्री ले लेगा। ठीक है ना, सपोज बेटा हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया 6 o'clock एंड 45 मिनट। ठीक है, और बी में क्या इनपुट कर दिया हमने, 10 hours एंड 25 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे दो टाइम पीरियड इनपुट कर दिए। ठीक है, कि सपोज़ कोई पर्सन 6:45 पे स्लीप यानी सोने के लिए गया एंड 10:25 पे जग गया, तो अब वो कितनी देर, यानी दोनों टाइम पीरियड हमको ऐड भी कर सकते हैं इनको, या फिर ये भी पता लगा सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी कितनी देर वो पर्सन सोया है। ठीक है, इसके बाद अब आइए अगली लाइन मैंने क्या बोली, मैंने दोनों के डेटा मेंबर्स को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये कॉल किया फंक्शन ए डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या करेगा, ए के डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर देगा 6:45, और फिर हमने कॉल किया बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये बी के डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर देगा, दैट इज 10:25। और इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, सबसे पहले काम इन दोनों टाइम पीरियड्स का सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखिए क्या किया, सम डॉट ऐड। बेटा मैंने सम, ये जो आपका ये जो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट बनाया और ए और बी दोनों को सम के अंदर पास कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन कॉल हुआ, यानी आपका ये जो फर्स्ट मेथड है ये यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, और इसमें मैंने दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी को सम की बॉडी में पास कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सम है वो करेंट ऑब्जेक्ट है एंड ए एंड बी आर द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। तो जब बेटा ये आप ए और बी यहाँ पास करोगे ऐड वाले मेथड में, और जब ये ऊपर पहुँचेगा तो ये जो ए है ये कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, OB1 में, और बी कहाँ कॉपी हो जाएगा जाके, OB2 में। ठीक है ना, तो यानी कि OB1 और OB2 ये दो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट बन के ऐड के पास आएंगे। यानी जब ए आएगा तो ये OB1 के नाम से आएगा, और ये जो बी आएगा ये OB2 के नाम से आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा OB1 के पास दो डेटा मेंबर हैं HR और MM, और बी के पास भी दो डेटा मेंबर हैं HR और MM। ठीक है, अब अंदर आइए और देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने बोला इंटीजर T1 इक्वल टू OB1 डॉट टाइम 2 मिनट्स। ठीक है ना, OB1 कौन है बेटा, ए है, तो मैंने OB1 को बनाया करंट ऑब्जेक्ट और कॉल किया एक फंक्शन टाइम 2 मिनट्स। ये क्या करता है ज़रा देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, आइए। तो ये देखिए बेटा ये मेथड है मेरा टाइम 2 मिनट्स। ये क्या करता है, रिटर्न HR इंटू 60 प्लस MM, यानी कि जिस भी करंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये काम कर रहा है उसके आवर्स को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देता है और उसमें फिर मिनट ऐड कर देता है। यानी हमको क्या करना है, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है
और फिर बाकी जो मिनट्स हैं उसको ऐड करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे अभी आपने ए की बॉडी से कॉल किया है, ठीक है, तो ए में क्या है बेटा 645, ठीक है, तो यानी कि ये 6 × 60 और +45, ठीक है, तो यानी कि 360 +45 कितना हो गया आपका 405। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या करेगा रिटर्न 405, और ये 405 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा आपका T1 में। ठीक है ना, तो बेटा आपका ये जो T1 है, T1 की वैल्यू कितनी हो गई 405। ठीक है, इसके बाद फिर अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन, इंटीजर T2 इक्वल टू OB2 डॉट टाइम 2 मिनट्स। ओके, यानी अब आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट OB2 यानी कि B के अंदर से वही सेम कॉल किया मेथड, कौन सा टाइम 2 मिनट्स। ओके, और फिर वही सेम थिंग होगी, आपका ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा टाइम 2 मिनट, रिटर्न HR × 60। पर ध्यान रखिए अब की बार ये जो HR और MM है ये कहाँ के होंगे, OB2 के होंगे। ठीक है, यानी कि आर्स को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ के आर्स कितने बेटा 10 है, तो 10 × 60, ठीक है, कितना हो गया 600 + 25, यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आएगी 600, ठीक है, एंड 25। तो बेटा ये देखो हमने क्या किया, हमने दोनों टाइम पीरियड्स को मिनट्स में ऐड कर लिया। ठीक है, और जब इनको मिनट में ऐड कर लिया, इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं अब आप, इंटीजर DI इक्वल टू T1 + T2, अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा 1030, यानी जो टोटल मिनट्स बन गए वो कितने बन गए 1030, यानी दोनों टाइम पीरियड को ऐड करने पे मिनट में आंसर इतना है। पर बेटा मुझको तो आंसर किस में शो करना है, हम लोग को अपना आंसर शो करना है आवर्स एंड मिनट में। ठीक है, और कहाँ स्टोर करना है, सम में स्टोर करना है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे होगा बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों के टाइम पीरियड को मिनट में तो कन्वर्ट कर लिया, अब सम में इसे मुझे आवर्स एंड मिनट में स्टोर करना है। तो आपको याद है ना एक और फंक्शन दिया गया था हमको क्लास की डेफिनेशन में, क्या नाम था उसका, मिनट्स टू टाइम। तो अब बेटा मैंने कॉल किया फंक्शन मिनट्स टू टाइम एंड DI, और ये दोनों का सम मैंने उसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कॉल किया मेथड मिनट्स टू टाइम तो इसके पहले मैंने किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा। तो जब ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा तो आपको पता है ना क्या होगा, ये फंक्शन कहाँ एग्जीक्यूट होगा, करंट ऑब्जेक्ट की बॉडी में। और आपको याद है ना कि इस समय कौन सा ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ करंट है, सम। ये पूरा जो फंक्शन चल रहा है ऐड वाला सम की बॉडी में, यानी कि ये जो मेथड है मिनट्स टू टाइम ये कहाँ चलेगा, सम की बॉडी में, और DI यानी कि 1030 इसमें पास कर दिया जाएगा। तो आइए चल के देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम करता है। मिनट्स टू टाइम ये चलेगा आपका सम की बॉडी में, M लेके आया है यानी कि 1030 लेके आया है, और आपको क्या करना है, इस 1030 को पहले 60 से डिवाइड कर देना है, तो मालूम पड़ जाएगी कि कितने मिनट हैं, और बाकी जो बचेगा वो आपके रिमाइंडर के फॉर्म में मिनट्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1030 को आपको क्या करना है 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा आ जाएगा यहाँ पे 17 आवर्स और 10 मिनट्स। ठीक है, और ये बेटा ये 17 और 10 कहाँ स्टोर हो जाएंगे, HR और MM, और ये HR और MM कहाँ का होगा, सम का होगा। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी ये यहाँ स्टोर हो जाएंगी 17 आवर्स और 10 मिनट्स। ठीक है, और बेटा ऐसे ही मुझको क्या करना है, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस पता लगाना है, और इसके लिए कौन सा मेथड कॉल हुआ है, टाइम इलैप्स। तो ये देखिए अब आखिरी लाइन मैंने क्या लिखी प्रोग्राम में, डिफरेंसेस, और मैंने कॉल किया फंक्शन टाइम डॉट, ठीक है सॉरी डिफ डॉट। तो यानी कि मैंने क्या किया अपने अब की बार याला जो है ऑब्जेक्ट को बनाया, करंट ऑब्जेक्ट डिफ को, और इसमें क्या किया मैंने A और B को पास कर दिया। ठीक है, डिफ डॉट टाइम इलैप्स्ड A, B, तो अब की बार ये वाला फंक्शन कॉल हुआ आपका टाइम इलैप्स्ड वाला, और इसमें क्या हुआ OB1 एंड OB2 के नाम से दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आपने ये जो दो आर्गुमेंट पास किए हैं A एंड B यहाँ पे आ जाएंगे,
और इसके बाद देखिएगा बाकी आप प्रोग्राम देखोगे तो आप देखना वही सब सेम प्रोसेसिंग है, सब कुछ पिछली बार की तरह है, केवल चेंज क्या हुआ है यहाँ पे लिखा था T1 प्लस T2, हमने क्या किया दोनों ऑब्जेक्ट को मिनट्स में कन्वर्ट किया। जैसे देखिए यहाँ पे T1 कितना आएगा 405, ठीक है, T1 की वैल्यू आएगी 405 और इसके बाद अगली जो वैल्यू आएगी T2 वो क्या आएगी OB2 डॉट टाइम टू मिनट 625, ये आपका T2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए अगली लाइन, दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे निकाला, मैट डॉट ए बी एस T1 माइनस T2, ज़्यादा में से कम वाला आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप बड़े आराम से यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरा 220, ठीक है, डी आई की वैल्यू आ जाएगी 220, ठीक है। और फिर क्या करना है मुझे, वही मैंने मिनट्स टू टाइम वाला फंक्शन कॉल किया और डी आई यानी कि 220 को पास कर दिया। तो आपको पता है कि मिनट्स टू टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का नाम तो लिखा नहीं गया है, तो यानी कि ये करंट ऑब्जेक्ट है, डिफ की बॉडी में चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि जो है वो आवर्स में और मिनट में, ये आवर्स और मिनट कहाँ के होंगे, आपके फोर्थ ऑब्जेक्ट डिफ के, यानी कि आप क्या करने वाले हो, वही सेम वे में आपका जो आंसर आया था 220, ये हमारा क्या होगा 60 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आवर्स एंड 40 मिनट। तो यानी कि जो एच आर की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी और मिनट की वैल्यू 40 हो जाएगी, और ये वैल्यू एच आर और एम एम यानी कि जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 आवर्स एंड 40 मिनट, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, लास्ट फंक्शन कॉल कर लोगे जो क्या करेगा इसके आवर्स एंड मिनट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा सम भी प्रिंट हो जाएगा और डिफरेंस भी प्रिंट हो जाएगा दोनों टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो दोबारा एक बार फिर से इसको वीडियो को जो है रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे अगली बार, तो इसका नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं शीट का। थैंक यू।